that time of the year again when lights go up, the dhols are out, the ghagras are ready, and it's also that time when controversy strikes. From a demand to stop the sale of meat in Navratras to those who are committed to ensuring that love jihad doesn't take place inside Garba pandals, to even a controversy now over the time limit on use of loudspeakers in Delhi being extended. A cloud of controversy over the festive season. Let's start with Madhya Pradesh. Here, some so-called Hindu groups declared that they will police the entry of people into Garba pandals, while the administration has issued a directive mandating strict security protocols, which includes identity verification and CCTV cameras. Some others went a step further, issuing a checklist of sorts in Maharashtra. The VHP said, people who enter will have to apply tilak, tie a sacred thread, and offer prayers to Hindu gods before being allowed in. While everyone may not be on board with the extreme measures, everyone does concur that security is priority. Then there is the issue of sensitivities and the sale of meat, because Navratras are a period when most Hindus stay away from meat, if not stay on a fast altogether. The municipal corporation in Varanasi has asked meat and fish shops to stay shut, with teams being constituted for enforcement. In MP, the district administration in Mehar and Umaria passed a rule for shops to not sell eggs or meat till the 2nd of October. In Hapur in Uttar Pradesh, hotels aren't selling meat or non-veg till the end of Navratras. Similar demands have been made in parts of Delhi as well. A few ruling party MLAs here wrote to the MCD and the CM asking for meat shops to be shut during the Navratras. When there was no response, some, like Tarvinder Marwa, went on their own and got shopkeepers to down the shutters. And while we're on the issue of respecting sensitivities, the state government in Delhi now has also allowed for loudspeakers to be used for longer in this festive period. Remember, for now there is supposed to be a silence period between 10 p.m. and 6 a.m. pursuant to Supreme Court guidelines. The government says this is causing inconvenience to devotees and hence a change had to be brought about. हमेशा देखती थी कि हमारे हिंदू उत्सव को दिक्कत होती थी, क्योंकि रामलीला कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती, दुर्गा पूजा कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती। जब गुजरात में डांडिया रात भर चल सकता है, जब बाकी राज्यों में इवेंट रात भर हो सकते हैं, तो दिल्ली वालों का क्या कसूर है भाई। तो इसलिए इस बार हमने इसे 12 बजे तक की परमिशन सभी रामलीलाओं को, दुर्गा पूजों को और सांस्कृतिक धार्मिक उत्सवों को दी है। ईश्वर की कृपा हम सब पे बनी रहे, राम राज्य आना चाहिए और उसके हम छोटी सी गिलहरी जैसा काम हम सबको करना चाहिए। And that brings us to the big questions. Is all of this, the policing, the special treatment, Hindu appeasement in the garb of security and convenience? And joining us now is Minister in the Delhi government, Mr. Manjinder Singh Sirsa. Sirsa साहब, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसकी क्या जरूरत थी कि जो समय सीमा है उसको 2 घंटा बढ़ा करके अब मिडनाइट तक कर दिया गया है। देखिए, जब ये अभी उत्सव के दिन चल रहे हैं, अभी रिलीजियस फंक्शंस बहुत होते हैं, इन दिनों के अंदर रामलीला के फंक्शन होते हैं, दुर्गा पूजा होती है और अक्सर लोग जो हैं ये लेट तक चलते हैं, 12 बजे तक चलते हैं प्रोग्राम। और ये 10 दिन की जो प्रोग्राम होते हैं इसमें अक्सर ये बात आती है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं जी, देखिए हम भी फंक्शन करना चाहते हैं, क्या साल के अंदर हम 8 दिन नहीं कर सकते। तो मुझे भी लगता है कि बड़ा जस्टिफाइड है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लगता है और हम सबको लगता है कि देखिए रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक सीमा तक, जहां तक हमें लगता है कि उसका नुकसान समाज पर नहीं और उसको मानना भी चाहिए। तो ये केवल 3 तारीख तक के लिए किया गया है ताकि ये जो रामलीला के समागम है, प्रोग्राम है, वो सही तरीके से हो सके। पर इसका मतलब तो ये होगा कि लोगों को सिर्फ 6 घंटे मिलेंगे ऑफ साइलेंस, क्योंकि पहले 10 से 6 तक होता था, अब 12 बजे तक उसको बढ़ा दिया गया है, तो शहर में तो शांति होगी ही नहीं। नहीं, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, वो 12 बजे तक पहले भी बजाते थे, उनको पुलिस रोकने जाती थी तो उसमें डिस्प्यूट क्रिएट होता था, जो रिलीजियस हार्मनी डिस्टर्ब होती थी और एक इशू बनता था। अननेसेसरली जो काम हो रहा है उसको ठीक तरीके से चलाने के लिए अगर उसको सही कदम से ही उठा लिया जाए, तो सरकार ने ये तय किया कि ये जो 11 दिन है, इन 11 दिनों के लिए ये 10 से लेके 12 तक, और हमने लिखा है उसमें भी और हमने आग्रह भी किया, मैं क्योंकि कुछ कमेटियों की मैं भी जिम्मेवारी देख रहा हूँ, रामलीला कमेटी के हमारे मित्र और जो मिनिस्टर हैं वो देख रहे हैं, तो हम लोगों ने सब कमेटियों से बात भी किया, चर्चा भी किया और हमें उम्मीद है कि वो इस चीज को पालना करेंगे।
पर इल्जाम तो सरकार पे ये लग रहा है कि हिंदुओं के लिए ये विशेष जो रिलैक्सेशन है वो क्यों किया गया है? नवरात्र के लिए आपने किया है, आप बाकियों के लिए क्यों नहीं करते? बाकी धर्मों के लिए, उनके त्योहारों के लिए क्यों नहीं किया आपने? तो बाकी भी अगर कोई रात को करेंगे तो करते क्यों नहीं करते? आप बताइए, जब ईद के अंदर बकरे काटे जाते हैं तो इतना पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, तो उसको भी उस टाइम इग्नोर करना पड़ता है रिलीजियस एंटिटी को देखते हुए, रिलीजियस हार्मनी को देखते हुए। ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना एक त्योहार का तरीका है। अब मान लीजिए ईद आएगी, बकरा ईद आएगी तो उसमें वो लाखों की तादाद में बकरे कटेंगे, लेकिन अब उनकी भी एक धार्मिक आस्था है तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है, उसको भी माना जाता है। इसी तरह जब दशहरा मनाया जाता है तो एक दिन के लिए रावण को जलाया जाता है तो वो भी मानना है, और इसी तरह दीपावली मनाई जाएगी तो ये रामलीला चलाई जाएगी तो इसको भी मानना है। तो यही इस देश की खूबसूरती है, और इस देश की खूबसूरती का गुलदस्ता है ये कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाए। लेकिन बहुत पेपर्स में ये छपा भी था कि नवरात्र के पहले बूम बॉक्स जिसमें भजन बजाए जा रहे थे, उसमें कीर्तन बजाया जा रहा था देर देर तक, सुबह 3 बजे तक ये बूम बॉक्सेस शहर में, दिल्ली शहर में उनको ट्रैवल कराया जा रहा था। पुलिस भी नहीं रोक रही थी क्योंकि उनको लगता है कि कि आपकी सरकार है वहां पे, तो अब ठीक है, ये सब भी अलाउड है। पहली बात, सरकार आपकी नहीं है, वो आपदा की सरकार थी, ये भाजपा की सरकार है। और नहीं, मेरा मतलब था आपकी, यानी कि मैं समझ गया पद्मा जी, मैं तो समझ गया था। कुछ ना कुछ हंसी मजाक में भी होना चाहिए, हर वक्त इतना सीरियस नहीं होना चाहिए कि खबरें सुनने वाले खबरें छोड़ दें। तो ऐसा है, देखिए आपने जो कहा इसकी भी हम भी चिंता करते हैं। कुछ जगह पे ऐसी हमारी भी जानकारी में आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है, छोड़ देती है, या भाजपा की सरकार, ऐसा नहीं है। हाँ, भाजपा सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है, सबको मिलकर करना है। और हम भी सबसे आग्रह करते हैं, जितनी कमेटियां, मैंने इन सबसे व्यक्तिगत तौर पर भी आग्रह किया कि हमने टाइम बढ़ा दिया है आपकी भावनाओं को देखते हुए, अब इसको हमें सबको मानना चाहिए। लेकिन जैसे कि आपके कई ऐसे एमएलएज भी हैं जिन्होंने एक मीट की दुकान बंद करने की बात की है। तरविंदर सिंह मारवा हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को, एमसीडी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा कि मीट शॉप्स को बंद कर देना चाहिए। जब ऐसा नहीं हुआ तो वो खुद भी चले गए वहां पे। ये एक तरीके से मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं है? देखिए, नवरात्रों के अंदर हर तरह की पूजा होती है इस देश में। जब दुर्गा पूजा होती है तो दुर्गा पूजा के अंदर वो मछली भी खाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें उन दिनों में, त्योहारों में अपनी मछली छोड़ देते हैं। हमें, ये मैंने आगे कहा था, बड़ा सुंदर गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को हमें सजा कर रखना है। ठीक है, किसी एमएलए साहबान ने ऐसी चीज रेज की है, उनकी भी अपनी भावना होगी, लेकिन मेरा मानना है कि जो नवरात्रे हैं उनके अंदर हर कोई इस चीज का ध्यान रखता है कि आसपास मीट मुर्गी की दुकानें ना हो, इसकी खुद ही लोग ध्यान रखते हैं, और जहां पे खुलनी है वहां पे खुलती भी हैं। तो इसलिए ये एक हमें सबकी भावनाओं के साथ, सबकी भावनाओं के अनुकूल काम करना है, इसमें कुछ सिलेक्टिव नहीं करना। लेकिन सर, ये जरूरी बात आपने बोली है कि हाँ, हर किसी की भावना को ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उन लोगों से आप क्या कहेंगे जिनको अब ये डर लग रहा है कि उनकी रोजी रोटी पर खतरा है क्योंकि आपकी सरकार आ गई है, उनको अपनी दुकान जबरदस्ती बंद करवाई जाएगी? ये तो बड़ी जाती है कि उनकी रोटी रोजी को खतरा हो जाएगा, ये मुझे नहीं लगता। ये मीडिया की बातें हो सकती हैं। क्या किसी की रोटी रोजी को खतरा हो जाता है अगर धार्मिक पर्व होते हैं? अब बताइए, लोग जब शराब के ठेके बंद हो जाते हैं, 2 तारीख को शराब के ठेके बंद रहते हैं, तो क्या शराब के कारोबारी भूखे मर जाते हैं? उसके बाद 26 जनवरी को बंद रहते हैं, 15 अगस्त को बंद रहते हैं, रिलीजियस हर स्टेट्स के दिनों पे बंद रहते हैं, दिल्ली में तो 12-13 दिन बंद रहते हैं, तो क्या वो सब भूखे मर जाते हैं? ऐसा नहीं होता। किसी का एक दिन बंद होने से कुछ होता नहीं है, ना हम किसी को बंद करने को कह रहे हैं, ना करवा रहे हैं। लेकिन ये बातें गलत हैं जो प्रचारित की जाती है ना, ये अच्छी बात नहीं है। हमें देश की सेंटिटी, देश की सभी धर्मों की सेंटिटी को मानना चाहिए, उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज के अंदर राजनीति लाएं, हर चीज में धर्म लाके दूसरों को कटघरे में खड़ा करें। हाँ, तुमने बंद करा दिए, तुम्हारे कर बंद हो गए, गलत बात है। नवरात्रि भी पवित्र है, उनकी पवित्रता को हमें मानना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ पद्मनाथ जी, हम जिस देश में रह रहे हैं ना, इस देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी, मिनॉरिटी कमेटी एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। अब बताइए, किस इस्लामिक कंट्री में आप जब रोजे चलते हैं, आप खाना खा के दिखा दीजिए, हैंड प्रो से मारेंगे। वो तो नहीं पूछते कि आप कौन से धर्म से हो, कहते आप भी नहीं खा सकते, हमारे सामने भी नहीं खा सकते। लेकिन हम भारत में ऐसा कोई नहीं करता।
यहाँ एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना सिखाया गया है और जन्मांतरों से सम्मान करते आए हैं। यही इस भारत की संस्कृति है और इस संस्कृति के ऊपर भारत टिका हुआ है। इसलिए इस तरह से हमें अपने हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए इस तरह की जो बातें करते हैं और जानबूझकर करते हैं। जी, बहुत ज़रूरी बात आपने कही है। जो लोग भी इस तरीके से कुछ भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक भी ये मैसेज साफ साफ जाना चाहिए कि सरकार सबके लिए है और सरकार, द गवर्नमेंट इज फॉर ऑल एंड एवरीवन्स livelihood should be respected, everyone's sentiments should be respected, and nothing should be done outside of the law. An important message at that time. Mr. Sirsa, thanks very much for speaking to us here on NDTV 24/7. Time for a quick break.